بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. محترم سامعین، زوم میں فالو کرنے والے احباب، پیارے بچوں، سرپرستان، والدین، اس وقت ہماری زوم میٹنگ میں شریک ہونے والے اور سب فالو کرنے والوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات جو ٹرسٹ بھی ہے، حیدرآباد مرکز ہے، جو بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی سلیبس تیار کیا ہے اور خواتین کے لیے بھی اس کے اندر ایک نصاب ہے. اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام مکتب فکر، تبلیغی جماعت اسلامی، اہل حدیث، اہل سنت، اس کے تمام علماء کرام اور کام کرنے والے حضرات نے اس کو تیار کیا اور اس میں اپنی قیمتی رائے دی اور اس کی سفارش کی، جو انہی جماعتوں کے اکابرین کے لکھی ہوئی 82 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے جو قرآنیات احادیث کی روشنی میں اس کو مرتب کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا نصاب، ایسی کتاب ہے جو اللہ کے حقوق، فرائض، زکوٰۃ اور اخلاق و آداب زندگی، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، اخلاق اور آداب زندگی، ماں باپ کی خدمت، حقوق و معاملات، حلال کمائی اور برائیوں سے روکنا، برائیوں کو روکنا اور برائیوں سے بچنا اور لوگوں کو بچانا، جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رشوت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے اور چوری ہے، زنا ہے، سود ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا اس کے اندر. اور حقوق اور معاملات میں خاص کر عبادات کے چیپٹرز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن حقوق اور معاملات کے اندر اخلاق، آداب زندگی، ماں باپ کی خدمت آج کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت سخت ضرورت ہے. تو اخلاقیات کے اوپر ہمارے لیکچر چل رہے ہیں. میں تمام کو اس لیکچرز کو اور اس کلاس کو شریک ہونے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شریک ہونے کی آپ دعوت دیں. اور اس اخلاق اور آداب کے لیے جو سائنٹیفک کورس بھی تیار کیا گیا ہے اور تصاویر کے ذریعے سے، اشکال کے ذریعے سے تمام باتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. اگر آپ کا واٹس ایپ نمبر ہمیں مل جائے یا آپ ہم کو یہ کریں تو ہم اس کا PDF فائل بنا کر آپ کو دیں گے. انشاءاللہ اس کا A3 پرنٹ، کلرنگ پرنٹ نکال کر یہ روزانہ اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اخلاقیات کے اوپر اور ماں باپ کی خدمت کے اوپر اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انسانی خدمت، برائیوں سے کیسے بچنا، روڈ ڈسپلین کیسے ہونا، راستے کے آداب کیسے ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہجری کیلنڈر جو اسلامی ہوتا ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اس کے معلومات بھی ہم تصاویر کے ذریعے سے آپ کو دیں گے. یہ PDF فائل آپ کو ہم روانہ کریں گے. اس کا پرنٹ نکال کر اپنے ہاتھوں میں اس کے کاپی رکھیے. تو اب اس وقت آج ہمارا عنوان ہے بچوں کو سیل فون، انٹرنیٹ اور TV وغیرہ سے اس کا جو بیجا استعمال ہو رہا ہے، فضول استعمال ہو رہا ہے، بچوں کو اخلاقی تربیت دینے میں، اخلاق سیکھنے میں
और अखलाकियात को पढ़ने में, माँ बाप की खिदमत करने में ये बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो आज हम इंटरनेट, सेलफोन और टीवी वगैरह के जो आज घर घर हमारे घरों में ये पूरा का पूरा मुआशरा, 90% मुआशरा इससे मुतासिर हो रहा है। हम खुद भी मुतासिर हो रहे हैं। हमको शर्म आ रही है कि हम आपके सामने इसके लिए मुफीद मशवरे दें और इसको मना करें, जबकि हम भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सेलफोन, लैपटॉप और टीवी और ये तमाम चीजें क्या है मालूम है इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी उम्रें क्या है? ये इतने छोटे बच्चे हैं। ये छोटे बच्चे इन चीजों से कितना मुतासिर हो रहे हैं और ये आगे चलकर इन बच्चों को, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये लोग आंखों की बीनाई से मुतासिर हो सकते हैं। इनको ऐनकें लग जाती हैं और इसके साथ साथ इनको दिमागी तौर पर बीमारियां भी आएंगी। तो आइए इसके सिलसिले में मैं आपको इसके इस्तेमाल की बातें और बेजा इस्तेमाल के लिए मैं इसको, हमारे लिए भी आपके लिए भी मैं इसको मना करूंगा। तो एक बात, अच्छी बात याद रख लीजिए कि हम अच्छे रहे तो हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे। यानी हम अच्छे रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे। अगर हमारे अंदर बिगाड़ है तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो एक ऐसी मिसाल भी मौजूद है, एक जोक की हैसियत से। एक वालिद साहब बच्चे को सजा दे रहे हैं तो वो बच्चा ये कहता है कि आप मम्मी को क्यों नहीं बोलते, वो तो सुबह से शाम तक फोन लगा लिए अपने कान को बातें करती रहती हैं और फोन देखती रहती हैं। तो शौहर ने अपनी बीवी को डांटा, तुमने ये क्या, तुम्हारी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है। तो बीवी अपने शौहर को कहती है, बस कीजिए, आप भी रात में सोते सोते ओढ़ लेने के बाद अंदर फोन लेकर जो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये इसका कौन जिम्मेदार है। तो बात ये है कि पूरा घर मुतासिर है। ये कहा जाए तो ये झूठ का आला भी बन गया है और शैतान पूरे घरों पे कब्जा किए हुए हैं। तो शैतान को भगाने के लिए और इससे बचने के लिए मैं आपको तदाबीर बताता हूँ कि सबसे पहले घर में टाइम टेबल लगाएं, टाइम टेबल बनाएं। और बच्चे रो रहे हैं, आप फोन दे रहे हैं। बच्चे जिद कर रहे हैं, फोन दे रहे हैं। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, फोन दे रहे हैं। और बच्चे यानी कि जो भी शरारत कर रहे हैं उनको फोन दे रहे हैं, खामोश बिठा दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना के घर में 6 बच्चियां हैं, 5 बच्चियां, 2 बच्चे हैं। ये हमारे बिल्कुल क्या है मालूम है, एक सही मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। ये बच्चों को रोक रहे थे, बच्चे नहीं रुक रहे थे, कभी कभी वो भी बैठ रहे थे। ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने एक बड़ा पत्थर लाकर अपने टीवी के ऊपर फोड़ दिया। टीवी फोड़ते ही बच्चे सहम गए और बीवी साहब भी सहम गई। उसके बाद क्या था कि वो पूरा घराना का घराना आलिमियत में घुस गया, यानी कि सबको आलिमियत में शरीक किया उन्होंने। आलिमियत के अलावा वो हिफ्ज करना भी, यानी कि हाफिज कुरान भी बन गए। आज उनका घराना पूरा उलमाए कराम और हुफ़ाज़ कराम के जरिए से आज जो घराना अल्हम्दुलिल्लाह शैतान के फितनों से बचा हुआ है। तो लिहाजा इसके लिए सुबह स्कूल की देखें कि हमारा बचपन कैसा है। अगर हमारे बचपन को हम देख लें तो हमारे बच्चों की हम तरबियत सही कर सकते हैं। क्योंकि हम भी बचपन में कैसे खेल कूद वगैरह करते थे, हमारे अंदर भी बिगाड़ था। लेकिन आज भी बच्चे जो है लेटेस्ट टेक्निक के जरिए से बिगड़ रहे हैं। तो आज घर घर सेलफोन, स्मार्टफोन, जितने बच्चे हैं उतने घर में, यानी कि जितने अफराद हैं उतने फोन घरों में आ चुके हैं, या 50% तो आ चुके हैं। तो ये बच्चे दरअसल सुबह से शाम तक फोनों को देखते हैं। स्कूल के औकात में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे तो स्कूल के औकात में तो स्कूल को जाते हैं, लेकिन घरों में रातों में 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक वो अपना जो भी होमवर्क है करते हैं, लेकिन ये फोनों का इस्तेमाल करते हैं। और आज माशरे का बिगाड़ जो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि माशरे पे हम बिगाड़ को कैसे खामोश, यानी किस तरीके से रोकें, इसको रोकने के लिए हमको चाहिए
कि बच्चों को हम उनके ऊपर खास निगरानी रखें और उसके साथ साथ बच्चों को कंट्रोल करें, वरना ये बच्चों को आंखों की बीमारी, दिमागी बीमारियां आती जाएंगी, अल्लाह बचाए। तो लिहाजा इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि घर में टाइम टेबल बनाएं, या तो मकान के अंदर फोन ही इस्तेमाल ना करें, सिवाय बड़े इस्तेमाल करें और उसको अपने लॉकअप में रखें। अगर ये घर में सबको एक एक फोन दे देंगे तो ये बच्चे सब क्या है, इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे। अब आजकल तो ये कोरोना वायरस की वजह से आज 6 महीने से बच्चे घरों में हैं। आज किसके बच्चे बगैर फोन के रह रहे हैं, बगैर टीवी के रह रहे हैं, बगैर इंटरनेट के क्या घरों में रह रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि 75% 90% बच्चे घरों में बेकार, यानी कि अच्छे मशगलों में। तो हम ये जो कोर्सेज जो शुरू करे हैं, तरबियती कोर्सेज, वालिदैन बच्चों को घर में तरबियत दें, बच्चों पर सख्ती करें, जब बच्चों को सजाएं दें और खुद भी क्या है इस फोन से बचते रहें और बार बार फोन का इस्तेमाल ना करें, वरना ये भी गुनाह है। इसको लहुअल हदीस कहा गया है। ये नमाजों से रोकता है, ये दीनी बातों से रोकता है और नेकी के कामों से रोकता है और तिलावत से रोकता है। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी वो भी हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। ये सब क्या है मालूम है, इस तरफ चले जाते हैं और ये कहा जाए तो ये झूठ का आला भी बन गया है और शैतान पूरे घरों पे कब्जा किए हुए हैं। तो शैतान को भगाने के लिए और इससे बचने के लिए मैं आपको तदाबीर बताता हूँ कि सबसे पहले घर में टाइम टेबल लगाएं, टाइम टेबल बनाएं। और बच्चे रो रहे हैं, आप फोन दे रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, फोन दे रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, फोन दे रहे हैं, और बच्चे और यानी कि जो भी शरारत कर रहे हैं उनको फोन दे रहे हैं, खामोश बिठा दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मौलाना के घर में 6 बच्चियां हैं, 5 बच्चियां, 2 बच्चे हैं। ये हमारे बिल्कुल क्या है मालूम है, एक सही मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। ये बच्चों को रोक रहे थे, बच्चे नहीं रुक रहे थे, कभी कभी वो भी बैठ रहे थे। ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने एक बड़ा पत्थर लाकर अपने टीवी के ऊपर फोड़ दिया। टीवी फोड़ते ही बच्चे सहम गए और बीवी साहब भी सहम गई। उसके बाद क्या था कि वो पूरा घराना का घराना आलिमियत में घुस गया, यानी कि सबको आलिमियत में शरीक किया उन्होंने। आलिमियत के अलावा वो हिफ्ज करना भी, यानी कि हाफिज़ कुरान भी बन गए। आज उनका घराना पूरा उलमाए कराम और हुफ़ाज़ कराम के जरिए से आज जो घराना अल्हम्दुलिल्लाह शैतान के फितनों से बचा हुआ है। तो लिहाजा इसके लिए सुबह स्कूल की अपडेट निकाल कर अपने हाथों में इसके कापी रखिए। तो अब इस वक्त आज हमारा उन्वान है, बच्चों को सेलफोन, इंटरनेट और टीवी वगैरह से इसका जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, फजूल इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को अखलाकी तरबियत देने में, अखलाक सीखने में और अखलाकियात को पढ़ने में, माँ बाप की खिदमत करने में ये बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो आज हम इंटरनेट, सेलफोन और टीवी वगैरह के जो आज घर घर हमारे घरों में ये पूरा का पूरा मुआशरा, 90% मुआशरा इससे मुतासिर हो रहा है। हम खुद भी मुतासिर हो रहे हैं। हमको शर्म आ रही है कि हम आपके सामने इसके लिए मुफीद मशवरे दें और इसको मना करें, जबकि हम भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सेलफोन, लैपटॉप और टीवी और ये तमाम चीजें क्या है मालूम है इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी उम्रें क्या है, ये इतने छोटे बच्चे हैं। ये छोटे बच्चे इन चीजों से कितना मुतासिर हो रहे हैं और ये आगे चलकर इन बच्चों को, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये लोग आंखों की बीनाई से मुतासिर हो सकते हैं, इनको ऐनकें लग जाती हैं और इसके साथ साथ इनको दिमागी तौर पर बीमारियां भी आएंगी। तो आइए इसके सिलसिले में मैं आपको
اس کے استعمال کی باتیں اور بیجا استعمال کے لیے میں اس کو ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی میں اس کو منع کروں گا۔ تو ایک بات اچھی بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم اچھے رہے تو ہمارے بچے اچھے رہیں گے، یعنی ہم اچھے رہے ہمارے بچے اچھے رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر بگاڑ ہے تو ہمارے بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ تو ایک ایسی مثال بھی موجود ہے، ایک جوک کی حیثیت سے ایک والد صاحب بچے کو سزا دے رہے ہیں تو وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ آپ ممی کو کیوں نہیں بولتے، وہ تو صبح سے شام تک فون لگا لیے اپنے کان کو باتیں کرتی رہتی ہیں اور فون دیکھتی رہتی ہیں۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، تم نے یہ کیا، تمہاری وجہ سے بچہ بگڑ رہا ہے۔ تو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے بس کیجئے، آپ بھی رات میں سوتے اوڑھ لینے کے بعد اندر فون لے کر جو دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پورا گھر متاثر ہے۔ اسکولوں کو جا رہے ہیں، اسکول کے اوقات میں وہ اسکول کو جائیں گے، پھر ٹیوشن وغیرہ کریں گے، تو ان کو عربی پڑھانا اور عربی ٹیوشن میں خاص کر نمازوں کو عملی مشق کروائیے، روزے کی عملی مشق کروائیے، اخلاق کی عملی مشق کروائیے، گھر کا کام کرنے کی عملی مشق کروائیے، پریکٹیکل ٹریننگ کروائیے۔ تو یہ رات کے 9 بجے سونے کا، رات کے 9 بجے آپ آرام کر لیجئے، لہذا نمازوں کی پابندی کیجئے اور روزمرہ جو سنتیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، فون اسلامی معلومات ہے، تلاوت ہے، انبیاء اور رسولوں کے قصے واقعات ہیں، ڈسکوریز ہیں، ایسے معلومات، لہذا اس کو گھروں کے اندر یعنی کہ فون کا استعمال صحیح کریں، وقت ضرورت بچے استعمال کر سکتے ہیں، بڑے اس پر قابو کریں اور اس پر کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے اور ہماری اخلاقی تربیت بھی کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا اس وقت یہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ روزانہ ہم ذکر اور درود شریف کے ساتھ ذکر کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، استغفر اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، ہماری اس کلاس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔